Hello guys, this is Dr. Jyoti. Today I'm here with a new lecture video on the topic xenobiotic. Let's start. Xenobiotic is made up of two words, xeno and biotics. Xeno is taken from the Greek language, which meaning is strange or foreign substances, and biotic means the living organism. So, xenobiotic is a chemical substance found within an organism but not produced naturally, and that is present in that organism. So, in other words, we can say xenobiotic वो chemical substances हैं जो किसी living organism में naturally produce नहीं होती हैं. They enter in the body through any kind of inhalation, any food, but they are harmful for that living organism. और कुछ ऐसी सब्सटेंसेस जो बॉडी में अपनी नॉर्मल कंसंट्रेशन से अबव प्रोड्यूस होने लगती हैं उन्हें भी हम xenobiotic कहते हैं. Xenobiotic mostly produced by human activities. Like natural compounds can also become xenobiotics if they are taken up by another organism. इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि ह्यूमन हार्मोन्स जो कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू जब पॉन्ड्स में या किसी वाटर बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो दे आर नॉट गुड फॉर द फिश एंड दे वर्क एज अ xenobiotic for the fish. And some other examples are the chemical produced by the predators. These chemicals are helpful for those predators, but these work as a xenobiotic compound for other organisms. Now we will go on the next slide. So, xenobiotic वो toxic substances हैं जो किसी living organism में naturally produce नहीं होती हैं, but they are harmful for that living organism. Now we will see the classification of the xenobiotic. First, we will see the classification on the basis of their sources. On the basis of the sources, xenobiotic is divided into two categories. First is natural and second is synthetic. Natural means वो xenobiotic जो किसी natural system में या फिर किसी भी living system के through naturally produce हो रही हैं, means they are not produced by the human activities. These are called the natural xenobiotic. Or synthetic, which are produced due to some human activities or some other kind of activities, which are these substances are not good for the human and some other living organism. These are considered as a synthetic xenobiotic. And these are some example of the natural xenobiotic. First is the bacterial toxin, mycotoxin, herbal toxin, and the human secretion. First, we will talk about the bacterial toxins. Bacteria produce some chemical substances which can be helpful for that bacteria but not good for the human health and some other living organism are called the bacterial toxins and considered as the bacterial xenobiotic. Means the xenobiotic produced by the bacteria. Main example है हमारा botulinum. Botulinum is a neurotoxin which is produced by the bacteria and it can affect the central nervous system of the human. Second, we will talk about the mycotoxins. These are the toxins which is produced by the fungi. तो जो ये substances होती हैं, these are harmful for the human and it can be entered in the human body or in some other living organism through food. And it can also be harmful for some plants also. And next we will talk about the herbal toxin. अगर herbal toxins की बात करें तो plants केवल हमारे लिए helpful ही नहीं होते हैं. There are some plants which can also be harmful for us, like some alkaloids produced by the plants can be xenobiotic for the human, like terpenes जो कि human के जो कि lipophilic होते हैं and they can work as a xenobiotic for the human. Next we will talk about the human secretion. जैसे कि मैंने last slide में बताया था कि human hormone work as a xenobiotic for the fish. तो इसी तरह से अगर हम देखें तो जो ह्यूमन फीकल मैटर है या कुछ अदर्स एक्सक्रीटरी मैटर ऑफ द ह्यूमन कैन वर्क एज द xenobiotic. ये एक्सक्रीटरी मटेरियल जब किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में जाता है दैट कैन वर्क एज द
xenobiotic for that organism. Now we will talk about the synthetic xenobiotic. अगर हम सिंथेटिक जेनोबायोटिक की बात करें तो ये सारी जेनोबायोटिक वो होती हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं. दो these are required in our routine life, but these can be harmful, or these are harmful for the human, like drugs. There are so many antibiotics which helping us in treating the various diseases, but it can also be harmful to the human health, so it can also consider as a xenobiotic. Means जो एंटीबायोटिक्स हैं वो हमें बहुत सारी डिजीज से बचाने का काम कर रही हैं, बट दीज कैन ऑल्सो बी हार्मफुल अगर हम हमारी बॉडी के अंदर इनकी कंसंट्रेशन जरूरत से ज्यादा जा रही है या हम बार बार इनका यूज कर रहे हैं, तो दैट कैन बी अ harmful substance, or we can say xenobiotic substance for the that particular individual. Next is the pesticide and fungicide. I will also want to add some other term, insecticide. You all are familiar with this term, pesticide, fungicide and insecticide. Insecticide, the chemical which we are using for the to kill the insects during our farming, and fungicide to kill the fungi. So these chemicals are helping us in the farming system, but these can also be harmful for human health. बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स और फंजीसाइड्स ऐसे हैं जो ह्यूमन के लिए अच्छे नहीं हैं, जो लॉन्ग टर्म तक हमारे बॉडी में जब एंटर होते रहते हैं तो इट कैन बी हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ, लाइक डीडीटी, बेंजोइक एसिड, और ऐसे ही बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हैं जो कि हम फूड के थ्रू या इनहेलेशन के थ्रू हमारे अंदर एंटर कर जाते हैं, एंड दीज आर नॉट गुड फॉर our health, so these are also considering as a xenobiotic. Now the chemicals में कोई भी ऐसी chemical substance जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करने पर टॉक्सिक इफेक्ट शो करे, दैट इज कॉल्ड द xenobiotic. कुछ एग्जांपल है जैसे कि अल्कोहल या मिथेनॉल, इन सब का अगर हम कंटिन्यूअस कंजप्शन हो रहा है हमारे अंदर, तो दीज आर नॉट गुड फॉर द human body or for other living organism. So this is the classification of the xenobiotic on the basis of their sources. Now we will go on the next slide. This is the classification of xenobiotic on the basis of their origin. On the basis of the origin, xenobiotics are divided into two categories. First is endogenous, second is exogenous. Endogenous xenobiotics are not the foreign substances. These are produced in the body due to some metabolic process, but they show the effects as the xenobiotics. Why? क्योंकि कुछ substances बॉडी में भले ही नेचुरल प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस हो रही हैं, लेकिन उनका ओवर प्रोडक्शन हमारे लिए टॉक्सिक सब्सटेंस की तरह काम कर सकता है. सो दे आर कंसिडर्ड एज द एंडोजीनस xenobiotic. मीन्स जो सब्सटेंस नेचुरली बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है लेकिन ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस सब्सटेंस को भी हम xenobiotic कंसिडर करते हैं और उसे हम एंडोजीनस xenobiotic कहते हैं. सेकेंड इज द एक्सोजीनस xenobiotic. Exogenous xenobiotic are totally foreign molecules which are ingested through the inhalation, oral route, or by the skin. And these can be allergen, cosmetic substances, and drugs which are harmful for the living system. मीन्स जो सब्सटेंस फॉरेन पार्टिकल्स हैं और हमारे अंदर एंटर करने पर टॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज द एक्सोजीनस xenobiotics. Now we will go on the next slide and we will see the example of endogenous and exogenous xenobiotic. So this is the classification of xenobiotic on the basis of their origin. On the basis of the origin, xenobiotics are categorized in two categories, endogenous and the exogenous. Endogenous xenobiotics are the substances which are produced inside the body naturally, that are called, but they are toxic for the living organism, so they are called the endogenous xenobiotics. And the exogenous xenobiotics are the substances which are produced due to the human activities or outside the living organism, but they are toxic for that living organism. They are called exogenous xenobiotics. Means
एंडोजीनस आर द सब्सटेंस जो कि बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस हो रही हैं, बट समटाइम्स दे कैन बी टॉक्सिक फॉर द बॉडी. इन दैट कंडीशन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाली ये सब्सटेंसेस एंडोजीनस जेनोबायोटिक की तरह से कैटेगराइज किए जाते हैं. और एक्सोजीनस जेनोबायोटिक्स जो सब्सटेंसेस बाहर ही या ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज प्रोड्यूस हो रही हैं, बट दे आर टॉक्सिक फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो they are considered as exogenous xenobiotics. These are the examples of the endogenous xenobiotics. First is the bile acids. Bile acids are the natural fluids produced by the liver. Bile acids helps in the digestion of the food. For the digestion of food, these bile acids produced by the liver first transfer to the stomach, and in stomach they break down the foods. But overproduction of bile acids can considered as the endogenous xenobiotics. क्यों? क्योंकि बाइल एसिड जब ओवर प्रोडक्शन होता है इनका, तो ये क्या करते हैं, फूड डाइजेशन के बाद इंटेस्टाइनल वॉल पर इरिटेशन कॉज करने लगते हैं और कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर शो करने लगते हैं, जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल रिलेटेड डिजीज राइज होने लगती हैं. इन दैट कंडीशन बाइल एसिड को एंडोजीनस जेनोबायोटिक कंसिडर किया जाता है. Next is the bilirubin. Bilirubin is produced by the liver and they provide the yellow color to the solid waste, as you all know. And bilirubin also play a major role in the clearance of the waste produced by the RBC, aged RBC और abnormal RBCs. Means जो हमारे aged RBCs होते हैं और waste RBCs होते हैं, उनका उन्हें excrete out करने में bilirubin help करता है. लेकिन बिलिरुबिन का ओवर प्रोडक्शन जो और होने की वजह से ये माल फंक्शनिंग करने लगता है, जिसकी वजह से जॉन्डिस कॉज होता है. तो इस कंडीशन में हम बिलिरुबिन को एंडोजीनस जेनोबायोटिक कहने लगते हैं, क्योंकि ये बॉडी के इनसाइड ही प्रोड्यूस हो रहा है, बट इन दिस कंडीशन और वी कैन से इन जॉन्डिस कंडीशन इट इज टॉक्सिक, सो कंसिडर्ड एज द एंडोजीनस जेनोबायोटिक. Third is the icosanoids. Icosanoids are also the natural substances. You know about the prostaglandins. Prostaglandins is the example of icosanoids, and prostaglandins, or we can say other icosanoids, helps in other cellular activities of the body, but overproduction of the prostaglandins and other icosanoids can cause the imbalance in the body, and just because of that body में कुछ ऑटो इम्यून डिजीज वाली कंडीशन राइज हो जाती है या इन्फ्लामेशन क्रिएट होने लगता है. तो उस कंडीशन में भी हमें नेचुरली प्रोड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन्स और कुछ और इकोसोनॉइड्स को एंडोजीनस जेनोबायोटिक्स कंसिडर करने लगते हैं. लास्ट इज द स्टेरॉइड्स. स्टेरॉइड्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड नेचुरली इन द बॉडी फ्रॉम ओवरीज, टेस्टिस एंड प्लेसेंटा इन प्रेगनेंसी आल्सो. And these steroids are also helpful in treating various diseases. But overproduction or overconsumption of the steroids is considered as the endogenous xenobiotic. But in case of endogenous, only the production of steroids inside the body considered as the endogenous xenobiotic. Means कि जब स्टेरॉइड का प्रोडक्शन बॉडी के अंदर ही ज्यादा हो रहा हो, तो उसी कंडीशन में हम स्टेरॉइड्स को एंडोजीनस जेनोबायोटिक कंसिडर करते हैं. ओवर प्रोडक्शन होने की वजह से स्टेरॉइड्स का प्रॉब्लम क्या होती है कि हार्ट डिजीज राइज होने लगती हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड डिजीज क्रिएट होने लगती हैं बॉडी के अंदर, या ट्यूमर जैसे कुछ प्रॉब्लम राइज होने लगते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि स्टेरॉइड्स का ओवर प्रोडक्शन भी स्टेरॉइड्स को एंडोजीनस जेनोबायोटिक्स कंसिडर कराता है. नाउ वी विल कम ऑन द एक्सोजीनस जेनोबायोटिक्स. जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था, ये जेनोबायोटिक्स क्या है, वो सब्सटेंसेस हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से या राइज हो रही है या फिर बाहर से ही बॉडी के अंदर या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर कर रही हैं और टॉक्सिक हैं बॉडी के लिए, तो उन्हें ही हम एक्सोजीनस जेनोबायोटिक्स कह रहे हैं. फर्स्ट इज द कार्सिनोजेंस. कार्सिनोजेंस क्या होता है ये सब आप जानते हैं. वो सब्सटेंसेस जो कैंसर कॉजिंग होती हैं आर कॉल्ड द कार्सिनोजेंस. अब कार्सिनोजेंस के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. जैसे कि हम बात करें कि टोबैको स्मोक जो होती है कैन ऑल्सो कॉज द कैंसर, so it also considered as a carcinogen, and it is toxic for the living organism, so we are considering it as a xenobiotic, or we can say exogenous xenobiotic. And second is the drugs.
ड्रग्स के अंदर वो सारी कैटेगरीज सारे सब्सटेंसेस आते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हम यूज कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम एंटीबायोटिक्स तभी लेते हैं जब हमें कोई डिजीज को ट्रीट करना होता है, बट इन सम केसेस over consumption of the antibiotic या regular use of the antibiotic can categorize to the antibiotic as the exogenous xenobiotic compound. Now we will come on the food additives. अगर फूड एडिटिव्स की बात करें तो सभी को पता है कि फूड के प्रिजर्वेशन के लिए जितना भी हम पैकेज्ड फूड खा रहे हैं उसमें हम एडिटिव्स यानी कि प्रिजर्वेशन के लिए कुछ केमिकल सब्सटेंसेस ऐड करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करते हैं। तो ये सब कुछ केमिकल्स हमारे लिए harmful होते हैं, and over consumption of these chemicals can give rise to the toxic condition, and that's why food additives are also considered as the exogenous xenobiotics. Next is the pesticide. ये मैंने last slide में भी आपको समझाया था कि it is also considered as the synthetic xenobiotic and also known as the exogenous xenobiotic. क्यों? क्योंकि synthetically pesticides को हम produce कर रहे हैं और ये बाहर से ही हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है या लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर कर रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज द एक्सोजीनस xenobiotic. पॉल्यूटेंट्स की बात करें तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं, जैसे कि जितने भी नॉइज पॉल्यूटेंट्स हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, वाटर पॉल्यूटेंट्स हैं, वो सब एक्सोजीनस xenobiotic की कैटेगरी में आते हैं. जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में जा रहा है वो सब कुछ हमारे लिए, या एयर में जा रहा है वो सब कुछ हमारे लिए एक्सोजीनस xenobiotic की तरह से ही काम कर रहा है. नाउ वी विल गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. In this slide, I will explain you the basic characteristics of the xenobiotic compound. मैंने सारी पिछली स्लाइड्स में आपको समझाया कि xenobiotics क्या होते हैं, बट किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड को हम xenobiotic कहें या नहीं कहें तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर ही हम कह सकते हैं कि ये सब्सटेंस या ये केमिकल सब्सटेंस xenobiotic है या नहीं है. फर्स्ट इज द पेनिट्रेट मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन, यानी कि कोई भी सब्सटेंस, अगर केमिकल सब्सटेंस जिसके अंदर कैपेबिलिटी है मेम्ब्रेन को डिफ्यूजन के थ्रू पेनिट्रेट करने की, दैट इज कंसिडर्ड एज द xenobiotic. लेकिन यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि कोई भी सब्सटेंस जो हमारे लिए बेनिफिशियल है वो भी डिफ्यूजन के थ्रू पेनिट्रेट कर सकती है कभी कभी बॉडी में, तो दैट डजंट मीन कि दे आर xenobiotics. वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो कि बॉडी में पेनिट्रेट कर पा रही हैं बाय द डिफ्यूजन, उन्हीं को हम xenobiotic कहते हैं. Second is the transported by the lipoproteins in blood. कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो कि टॉक्सिक भी है और लिपोप्रोटीन्स के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट हो पा रही है ब्लड में, उसी को हम xenobiotic कहते हैं. मींस जो लिपिड्स के साथ डिसॉल्व होके ब्लड में जा रही है, उस टॉक्सिक सब्सटेंस को हम xenobiotic की कैटेगरी में रख सकते हैं. थर्ड इज रिक्वायर्ड केमिकल कन्वर्जन ऑफ टू फैसिलिटेट द एक्सक्रीशन, यानी कि कोई केमिकल सब्सटेंस जो कि टॉक्सिक है और उसका कन्वर्जन या उसका एक्सक्रीशन के लिए हमें केमिकल कन्वर्जन की जरूरत पड़ रही है, यानी कि डायरेक्टली वो एक्सक्रीट नहीं हो पा रही है बॉडी से, उन केमिकल टॉक्सिक सब्सटेंसेस को भी हम xenobiotic की कैटेगरी में रखते हैं. एंड लास्ट वन इज द लिपोफिलिक, यानी कि द टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस विच इज लिपोफिलिक इन नेचर इज कॉल्ड द xenobiotic. क्यों? क्योंकि जो केमिकल सब्सटेंस लिपोफिलिक हैं means they are tend to store in the fats, so they can be stored in bone and muscles also, and where they can give rise to the toxicity. So they are these substances which are lipophilic in nature and toxic in nature are considered as a xenobiotic. So we can say कि इन 4 प्रॉपर्टीज के बेसिस पर किसी भी केमिकल टॉक्सिक सब्सटेंस को हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो xenobiotic है या नहीं. अगर वो मेम्ब्रेन डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट करके डिफ्यूजन के थ्रू एंटर कर पा रही है तो, या फिर लिपोप्रोटीन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर पा रही है ब्लड में तो, या फिर वो डायरेक्टली एक्सक्रीट नहीं हो पा रही है बॉडी से, हमें इसके लिए केमिकल कन्वर्जन की जरूरत पड़ रही है. और लास्ट इज द लिपोफिलिक, यानी कि वो लिपिड्स में जाकर या फैट में जाकर स्टोर हो पा रही है और बोन्स में और मसल्स में जाकर
स्टोर हो जा रही है, ना कि बॉडी से एक्सक्रीट हो रही है। ऐसे ही टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंसेस को हम ज़ेनोबायोटिक कह सकते हैं। नाउ वी विल गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। In this slide, I will explain you the exposure ratio of human in different xenobiotics. Means कि human किस तरह की xenobiotic के exposure में कितना ज़्यादा है, या हम ये कह सकते हैं कि किस तरह की xenobiotics को का रेशो ज़्यादा है कंज्यूम कर रहे हैं हम, या चांस ज़्यादा है उसे कंज्यूम करने के। इस चार्ट में मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया है। As you can see here, the first bar is showing the 48%, which is showing the environmental xenobiotics. Means in this category we are considering to the xenobiotic compound which are present in the environment, like pesticide, pollutants और ड्रग्स जो कि एक्यूमुलेट हो चुके हैं हमारे एनवायरनमेंट में, सॉइल में, वाटर में, क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट के थ्रू वाटर में बॉडीज में आ जाती हैं और फिर उन वाटर बॉडीज से हम ह्यूमन के में भी एंटर कर जाती हैं या किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर कर जाती हैं और जो कि टॉक्सिक है। तो इस तरह से अगर हम कहें तो इस वाले ग्राफ के थ्रू हम देख सकते हैं कि जो एनवायरमेंटल ज़ेनोबायोटिक है हम उनके एक्सपोजर में ज़्यादा होते हैं, और इस एनवायरमेंटल ज़ेनोबायोटिक्स में पेस्टिसाइड, पॉल्यूटेंट्स, यही सब कुछ आता है। नेक्स्ट इज द टॉक्सिक फूड्स। 15% रेशो ऐसे ज़ेनोबायोटिक्स का है जो हमें फूड्स के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करती हैं। जैसे कि हम फूड प्रिजर्वेटिव्स को कह रहे हैं, जितने भी फूड प्रिजर्वेटिव्स हम ले रहे हैं, प्रिजर्वेटिव या फूड फ्लेवरिंग एजेंट या हम कहें फूड प्रोसेसिंग केमिकल्स हैं, they are toxic for the living organism, so they are also considered as the xenobiotic। और उन ऐसे xenobiotics का 15% पार्ट है जो कि हम 15% रेशो है जिसके एक्सपोजर में हम आते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज द ड्रग्स, यानी कि जो ड्रग्स हैं वो भी हमें 15% पार्ट है उनका भी हमें ज़ेनोबायोटिक हमारे अंदर जाने का। कॉस्मेटिक्स आर ऑल्सो द 12% रेशो, यानी कि जो कॉस्मेटिक हम यूज करते हैं उनके थ्रू भी ज़ेनोबायोटिक के एक्सपोजर में हम आ सकते हैं। 12% उसका रेशो है जो कॉस्मेटिक थिंग्स हम यूज कर रहे हैं, अदर इन द फॉर्म ऑफ लिपस्टिक, सनस्क्रीन, इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चराइजर। उनमें कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो स्किन के थ्रू पेनिट्रेट करके ह्यूमन बॉडी के अंदर या कुछ ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और दे आर टॉक्सिक फॉर द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ द बॉडी, एंड दैट्स व्हाई दे आर द xenobiotic and they are toxic for the body। एंड कुछ और चीजें हैं जिसमें हम बची कुची उसमें हमने 10% बचता है, यानी कि हम कह सकते हैं जो एनवायरमेंटल ज़ेनोबायोटिक है वो 48% एक्सपोजर है हमारा उनके बीच में। इसके अलावा फूड, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स से हमारा 10 to 15% एक्सपोजर होता है। अगर हम एनवायरमेंटल ज़ेनोबायोटिक को ध्यान में रखते हुए कंट्रोल करना चाहें तो दैट कैन कवर द मेजर पोर्शन ऑफ द एक्सपोजर टू द ज़ेनोबायोटिक ऑफ द ह्यूमन। Now we will go on the next slide. In this slide, I'm just showing you the normal sources of the xenobiotic compound, जहाँ से हमें xenobiotic compound मिल सकते हैं। ये इस टेबल में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया कि एनवायरमेंट्स के थ्रू कितने % xenobiotics हमारे एक्सपोजर में हम एक्सपोज हो सकते हैं फूड के थ्रू, तो उन्हीं के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने इस टेबल में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जैसे कि अगर हम बात करें फॉसिल फ्यूल्स, प्लास्टिक, इंडस्ट्रियल फीड स्टॉक, इन सब के कांटेक्ट में आने पर हमें एल्केन्स और एल्कीन्स टाइप्स के जो ज़ेनोबायोटिक कंपाउंड है उनके एक्सपोजर में आ जाते हैं हम। पेंट है, पेंट इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ ज़ेनोबायोटिक। पेंट से हमें एल्काइल कीटोन्स मिलते हैं जो हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस का काम करते हैं। एंड प्लास्टिक्स, यू ऑल नोज अबाउट दिस कि हम सब प्लास्टिक को कंट्रोल करने में लगे हैं कि प्लास्टिक का कम यूज करें बिकॉज इट ऑल्सो वर्क एज द ज़ेनोबायोटिक। और जो कंपाउंड इसका ज़ेनोबायोटिक की तरह काम करता है दैट इज द स्टायरीन। स्टायरीन इज प्रेजेंट इन द प्लास्टिक्स एंड विच इज अ हार्मफुल कंपाउंड फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो वी शुड रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक। Fossil fuel, solvent and some industrial feedstocks are also the sources of the xenobiotic। Dyes जो कि हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, पिगमेंट्स जो फूड में यूज करते हैं या
कलरिंग एजेंट हम यूज करते हैं, दीज आर ऑल्सो द सोर्सेज ऑफ द जेनोबायोटिक। अब अगर हम बात करें कि पेस्टिसाइड, पल्प, पेपर और पल्प इंडस्ट्री में हम जितनी सारी डाई यूज करते हैं, जितने केमिकल यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर टॉक्सिक फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो दीज आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज द जेनोबायोटिक। तो इस स्लाइड में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि जो नॉर्मल रूटीन में हम चीजें देखते हैं उनमें से हम किन्हें जेनोबायोटिक कंसिडर करते हैं और उनका क्या कंपाउंड, पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड जो हमारे लिए जेनोबायोटिक की तरह काम करता है या टॉक्सिक सब्सटेंस की तरह काम करता है। नाउ वी विल गो ऑन द नेक्स्ट। इन दिस स्लाइड आई एम शोइंग यू द फेट ऑफ जेनोबायोटिक, यानी कि जेनोबायोटिक किस तरह से हमारी बॉडी में एंटर करती हैं और एंटर करने के बाद किस तरह से वो प्रोसेस होती हैं और एक्सक्रीट आउट होती हैं बॉडी से या स्टोर हो जाती हैं बॉडी में। मैं इस स्लाइड में बेसिकली बेसिक तरीके से जेनोबायोटिक किस तरह से प्रोसेस होती है बॉडी में वो दिखा रही हूँ। इन डिटेल आई विल एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट लेक्चर। लाइक सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जेनोबायोटिक, कोई भी जेनोबायोटिक कंपाउंड जो कि टॉक्सिक है ऑब्वियसली हमारे लिए, तो वो जब हम इनहेल कर लेते हैं, यानी कि उसको बॉडी में एंटर करने के 3 रूट है यहाँ पर, इनहेलेशन, ओरल कैविटी और बाय द डर्मल पेनिट्रेशन, मतलब कि स्किन मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर भी वो बॉडी के अंदर एंटर कर सकती है। यानी कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस जब हम उसके एक्सपोजर में आते हैं जो कि टॉक्सिक है, वो हमारी बॉडी में 3 रूट्स के थ्रू एंटर कर सकता है। फर्स्ट इज द इनहेलेशन, सेकंड इज द ओरल कैविटी और थर्ड इज द बाय द पेनिट्रेशन ऑफ स्किन। अब इन तीनों रूट के थ्रू जब ये केमिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो उसके बाद 2 ऑप्शन होते हैं इसके पास, या तो ये ब्लड में एब्जॉर्ब होए और ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो, या फिर इसके साथ साथ ब्लड और ऑर्गन टिश्यू दोनों के साथ साथ भी चल सकता है। यानी कि बॉडी में एंटर करने के बाद ब्लड में एब्जॉर्ब हो सकता है और दूसरा ऑप्शन है ऑर्गन और टिश्यू में जाकर भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। अब जब ये वाला इंसिडेंट पूरा हो जाता है कि ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है कोई भी टॉक्सिक कंपाउंड या ऑर्गन और टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके बाद इसके पास 3 पाथवे आते हैं। फर्स्ट एक तो ये कि ये फर्स्ट है ये कि ये डायरेक्टली कोई छोटा मोटा हमें इन्फेक्शन देके ऐसे ही एक्सक्रीट हो जाए, फर्स्ट पाथवे तो ये है। सेकंड है कि ये हमें यहीं पर मेजर टॉक्सिसिटी शो कर दे, यानी कि टिश्यूज में जब डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है वहीं से डायरेक्टली टॉक्सिसिटी शो कर देता है, जिसमें क्या होता है कि हम टिश्यूज में टॉक्सिसिटी से हम देखते हैं कि हमें सेल्स में एबनॉर्मलिटीज शुरू हो जाती हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे कि हम कहते हैं लीवर में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वो सीधे सीधे सेल्स और टिश्यू में साइटोटॉक्सिसिटी शो करता है। उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि कोई भी टॉक्सिक कंपाउंड सीधे ऑर्गन और टिश्यू में जाकर अपना टॉक्सिक नेचर शो कर रहा है। अब थर्ड है यहाँ पर हमारा कि ये कंपाउंड जाके ना तो ये एक्सक्रीट हो और ना जाके किसी भी टिश्यू और ऑर्गन पर टॉक्सिसिटी शो करे। ये धीरे धीरे जाकर कोई भी टॉक्सिक कंपाउंड ऐसा हो सकता है कि जो धीरे धीरे बोन्स में या मसल्स में जाकर हमारी स्टोर होता रहता है और ये इमिडिएटली हमें कोई टॉक्सिसिटी नहीं दिखाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोर होने की वजह से ये टॉक्सिसिटी शो करने लगता है फिर, जिसकी वजह से हमें बोन रिलेटेड या कुछ ट्यूमर राइज हो जाते हैं, बोन रिलेटेड डिजीज भी हो जाती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब कोई कंपाउंड, और फोर्थ पाथवे जो है वो ये है कि ना तो ये स्टोर हो जाकर और ना डायरेक्टली टॉक्सिसिटी शो करे और ना जाके एक्सक्रीट हो। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस उसे कोई केमिकल चेंज की जरूरत है। दैट मीन्स कि उसे कोई केमिकल रिएक्शन के बाद हम किसी ऐसी स्ट्रक्चर में चेंज कर दें कि जिससे वो एक्सक्रीट हो सके बॉडी से। तो यहाँ पर आती है बात बायो ट्रांसफॉर्मेशन की। अब इस स्टेप पर आकर बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उस केमिकल सब्सटेंस का जो कि टॉक्सिक है। अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि क्योंकि वो टॉक्सिक सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के अंदर एंटर करी है वो ना तो डायरेक्टली एक्सक्रीट हो पा रही है हमारे बॉडी में से और ना टॉक्सिसिटी शो कर रही है और ना स्टोर हो रही है। दैट मीन्स कि अब हमें उस पर्टिकुलर केमिकल स्ट्रक्चर के चेंज की जरूरत है, जिसकी वजह से वो उस चेंज होने के बाद कैपेबल हो जाए कि बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाए। उस कंडीशन में जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसकी केमिकल नेचर चेंज होती है, जिसे हम इस प्रोसीजर को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जब किसी टॉक्सिक कंपाउंड की केमिकल नेचर को चेंज करना होता है बॉडी को, उस प्रोसीजर को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं।
अब यहाँ पर से उसके केमिकल नेचर में चेंज होता है, उसके बाद कॉन्जुगेशन वाला स्टेप आता है, मीन्स कि उसमें कुछ और मॉडिफिकेशन होते हैं, और उसके बाद वो टॉक्सिक सब्सटेंस ये सारे केमिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस होने के बाद यहाँ से एक्सक्रीट हो जाती है बॉडी में से थ्रू किडनी और थ्रू एनी रूट. आई विल एक्सप्लेन यू लेटर इन नेक्स्ट लेक्चर कि किस किस रूट से ये जेनोबायोटिक या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट होती है. तो इस तरह से समझ में आता है हमें कि कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर करती है तो वो किस किस रूट को फॉलो करके बॉडी में से एक्सक्रीट हो सकती है. Now we will go on the next slide. In this slide, I am just showing you the path route by which a xenobiotic compound can enter into the human body. There are three major routes by which the xenobiotic compound can enter into the body. First is the intestine, or we can say the oral cavity. जो entrance पोर्शन है दैट इज द ओरल कैविटी, जिसमें हम कोई फूड के थ्रू या कोई भी थ्रू वाटर हमारे अंदर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर कर जाता है. इंटेस्टाइन उसका पार्ट होता है, वो साइट ऑफ एक्शन होता है, बट एंट्री जो है दैट इज फ्रॉम द ओरल कैविटी. सेकेंड इज द लंग्स. तो लंग्स में अगर हम बात करें तो लंग्स में हम इनहेलेशन के थ्रू ही कोई टॉक्सिक कंपाउंड या कह सकते हैं कि जेनोबायोटिक कंपाउंड एंटर कर सकता है, यानी कि डायरेक्टली लंग्स में तो कोई चीज जाएगी नहीं, वो इनहेलेशन के थ्रू ही हमारी बॉडी में एंटर कर सकती है. एंड थर्ड वन इज द स्किन. स्किन में हमारे जो मेम्ब्रेन है उसे पेनिट्रेट कर सके वो, तभी कोई जेनोबायोटिक कंपाउंड हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि तीन मेजर रूट हैं जिनके थ्रू कोई भी जेनोबायोटिक कंपाउंड यानी कि टॉक्सिक कंपाउंड हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है, और उनके साइट ऑफ एक्शन जो है वो ये है. यानी कि ओरल कैविटी से अगर एंटर करता है तो उसका साइट ऑफ एक्शन इंटेस्टाइन होगा, और अगर इनहेलेशन के थ्रू एंटर करता है तो उसका साइट ऑफ एक्शन लंग्स होगा, और स्किन में पेनिट्रेट करता है तब उसके साइट ऑफ एक्शन मसल्स या मस्कुलर सेल्स होती हैं. These are the entry of the xenobiotic into the cells. अब जब कोई भी टॉक्सिक कंपाउंड हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो उसके बाद बॉडी में एंटर करने के बाद उसे सेल्स के अंदर भी एंटर करना होता है, तभी वो अपनी फुली साइटोटॉक्सिसिटी नेचर शो कर सकता है. तो सेल्स में यानी कि टिश्यू में से या ऑर्गन में से सेल्स में एंटर करने के लिए वो क्या क्या पाथवेज फॉलो करता है. दीज आर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पिनोसाइटोसिस, फिल्ट्रेशन थ्रू द पोर्स, लिम्फेटिक एब्जॉर्प्शन, पैसिव डिफ्यूजन. ये सब वो रिएक्शंस हैं या कह सकते हैं ये सब वो पाथवे हैं जब कोई टॉक्सिक कंपाउंड बॉडी में एंटर कर चुका है और ऑर्गन और टिश्यू में पहुंच चुका है और वहां से उसे सेल्स में एंटर करना है, तब उसके लिए वो ये सब पाथवे फॉलो करता है. एंड you all are familiar with these pathways: active transport, pinocytosis. So no need to explain these pathways in detail here. So guys, if you like this video, please like and subscribe my channel. Also tap on the bell icon so that you can get the latest update. Thank you everyone.